spherical mirror, and which type of spherical mirror? A concave mirror. This is the reflecting surface, this is the painted surface. So this is principal axis, part of principal axis, and this point is center of curvature, C. We know that this distance from center of curvature to pole is equal to R. R is the total distance. Now, for reflection rules, we know that any line passing through center of curvature is geometrically radius of this sphere, so it makes a right angle here. That means this is a normal. So any line passing through center of curvature is a normal. Now, we take a ray which is coming parallel to principal axis. Ray which is parallel to principal axis. I will make that ray here. It is coming from this direction and it is parallel to principal axis. This is an incident ray in this direction. This is the point of incidence. Here it will be reflected. The rule is angle of incidence is equal to angle of reflection. So for that I will need a normal. So for this small tangent here, for this small plane mirror here, this line acts as normal. This is normal. So whatever angle is made on this side, let us say theta, the same angle will be made on the other side, and that will make a reflected ray. So we make the same angle on this side, theta, and make the reflected ray in this manner. What is the condition? That this angle should also be theta. So this is angle of incidence equal to theta, and this is angle of reflection equal to theta, and this is the reflected ray. Okay, now we know this rule. Another ray which is passing along the principal axis, where will it go? If a ray is passing through along the principal axis this way, what is the angle made by this ray along with the normal? Now, what is normal here? The line connecting center to pole is the normal. Where is the ray? Ray is also going from center to pole. So what is the angle between the two? 0. So here angle of incidence is 0. What will be angle of reflection? 0. That means it will return by making 0 angle with the axis. So it will return back the same way. Now this becomes a thumb rule for us. Any ray which is going along the principal axis will return in the same direction. Please remember it, and we will write it down. This. Okay. So we get this one rule, and now we do a small construction of geometry. ये जो point है जिस पर मिरर में ये रे आकर इंसिडेंट होती है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर m पर आता है. सो एंगल AMP और एंगल AMC, दिस इज ए राइट एंगल. ओके.
Now, this point here there is a intersection of the two rays which are reflected back. और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पैरेलल रेज होती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम है फोकस. सो दिस पॉइंट इज फोकस. और फोकस से जो पी की लेंथ होती है दैट इज एफ, फोकल लेंथ. ओके, अब इसमें ज्योमेट्री देखिए. ये दोनों एंगल थीटा थीटा इक्वल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्शन है. सो इफ दिस एंगल इज थीटा द अल्टरनेट एंगल दिस इज ऑल्सो थीटा. एंगल ट्रायंगल सी एफ ए, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल थीटा हैं, इसलिए इसका एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा होगा. दिस इज 2 थीटा. दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 2 थीटा. अब दो ट्रायंगल देखिए, ए एफ एम 2 थीटा, ए सी एम 1 थीटा. ये जो डायग्राम बना है इसमें मिरर बहुत बड़ा है और ये एंगल हमको बड़े बड़े दिख रहे हैं. हम ये मानते हैं नॉर्मली मिरर बहुत छोटा होता है और उसका जो कर्वेचर है बहुत कम होता है. अगर कर्वेचर बहुत कम है लाइक दिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो पोल और ये नॉर्मल दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. पोल एंड एम दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो पी एंड एम आर very close. What is AM? Normal. Okay. This angle ACF is equal to theta and angle AFM is equal to 2 theta. For small angles, angle in radian is equal to sin theta and that is also equal to tangent theta. छोटे एंगल के लिए रेडियन में अगर एंगल को नापे दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, तीनों का मेजरमेंट करीब करीब एक जैसा ही रहता है. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं. ये चीज़ बार बार आ चुकी है. We have a very small angle here. This is a very small angle, almost 0. तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? आंसर है इन दोनों एंगल का सम 180 है. तीनों का सम 180 है, ये ऑलमोस्ट 0 है, तो इन दोनों का सम अप्रॉक्सीमेटली 180 हुआ. अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो 90 हुआ. ओके, यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर बनाया तो ये तो 90 है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 90 है, क्योंकि ये अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो ये 88 89 हुआ, दैट इज एज गुड एज 90. ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं. अब ये एंगल थीटा है तो थीटा को रेडियन में हम नापेंगे तो कितना होगा? दिस इज ABC. तो थीटा को रेडियन में नापिए, AB अपॉन AC, आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, साइन थीटा अगर हम इसे 90 मानते हैं तो AB अपॉन AC, ये है साइन थीटा. और अगर टेंजेंट थीटा लेते हैं तो टेंजेंट थीटा इज AB अपॉन BC, लेकिन AC और BC इक्वल है, क्योंकि ये दोनों करीब करीब इक्वल हैं
इसलिए ये दोनों साइड्स भी ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC। अब आप देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तीनों अप्रॉक्सीमेटली AB अपॉन AC ही है। इसलिए थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, तीनों कैसे हैं, इक्वल। ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, दिस वी आर गोइंग टू यूज एट मेनी प्लेसेस, मिरर्स में, लेंस में, सब जगह यूज करेंगे, इसलिए इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। वी विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ with this explanation we can write as theta is equal to tan theta लीजिए AM अपॉन CM, AM अपॉन CM, ठीक। अब 2 थीटा लीजिए, 2 थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन FM, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द टू इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट, थीटा अपॉन 2 थीटा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू AM अपॉन CM, AM upon CM to be divided by AM upon FM is equal to 1 1, ये ऊपर चला गया। This is FM upon CM, F से लेके M तक का डिस्टेंस और F से लेके P तक का डिस्टेंस। यहाँ पर अगर पॉइंट F है तो ये F से M का डिस्टेंस है और ये F से P का डिस्टेंस है। इन दोनों के डिस्टेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल कर्वेचर। तो मोस्टली मिरर जो हैं स्मॉल कर्वेचर के ही होते हैं और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो M and P are very close to each other and this we can write as FM. FM is approximately equal to FP. तब हाफ किसके बराबर हो गया, हाफ इज इक्वल टू FP डिवाइडेड बाय CP. FM is equal to FP and CM is equal to CP. तो FP और CP. नाउ FP, F से लेके P तक का डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। C से लेके P तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस वन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, R. दिस इज हाफ and this gives us relation that radius of curvature is twice focal length. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मिरर्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ दैट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू, दिस वी हैव गॉट देयर। फिर से हम वापस अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्लेक्शन रूल्स। हमने ये देखा, ए रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, ये रूल अभी तक हमने देखा। दूसरा, जो रे इसके पैरेलल आती है वो कहाँ जाएगी, ये हमने देखा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, फोकस। तो जो भी रे इसके पैरेलल आएगी, यहाँ पैरेलल हो, यहाँ पैरेलल हो या यहाँ पर पैरेलल हो, वो सब रेज फोकस से होकर जाएंगी। इफ वी हैव ए रे, incident ray which is parallel to principal axis coming in this particular direction here, then after reflection it will pass through focus. यहां से अगर हम
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे, ज्योमेट्री से बनाएंगे, वी विल फाइंड दैट इट इज कमिंग टू द सेम लोकेशन, दैट इज फोकल लेंथ. हाँ, ये कौन है? नॉर्मल. ये नॉर्मल. तो ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा, और फिर से ये जो रे गई है ये कहाँ से पास होगी? फ्रॉम द सेम पॉइंट. ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट है. सब रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ मिलती हैं? एक पॉइंट पे. उसका नाम हमने क्या रखा? फोकस. सो ये हमारा दूसरा नियम बन गया. All the rays which are parallel to principal axis will intersect or will pass through focus. कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज. ये दूसरा नियम आ गया. तीसरा, इसी को नियम को उल्टा कर दो. इस रास्ते की रे इधर से गई है, अगर हम रे को इस रास्ते से भेजेंगे तब भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और वो यहाँ से वापस आएगी. अगर हम ये रे देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इधर से टॉर्च जलाकर ऐसे रे को भेजेंगे तो वो इस रास्ते से वापस आएगी, क्योंकि ये एंगल इक्वल है. इसका ये मतलब है एनी रे विच इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमने तीसरा नियम लिख लिया. इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. नो, ये तो पहले लिख चुके हैं. इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल. बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसे जाएगी ये और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये हमें एक और तरीका मिला रिफ्लेक्शन का. अब एक चौथा तरीका देखिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस वाला ही था. ये कहाँ से गई थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. नाउ एनी रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गोइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे इसमें हमने एक रे बनाई, let us say that ray is coming from this direction here, और ये रे इस तरह की है जो कि जाते जाते सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होकर जा रही है. ये ऐसे कहाँ से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, यहाँ पर अगर हमको नॉर्मल बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइन जाएगी जो कि नॉर्मल बनेगी, और उस लाइन के साथ इसका एंगल क्या हुआ? 0. इसलिए रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0 होगा और वो इसी डायरेक्शन में वापस आएगी. ये तो ये हमारा एक और नियम बन गया. ये नियम वही है जो ये है, प्रिंसिपल एक्सिस. सो वी कैन राइट
a ray along any axis. In the case of principal, we can write. क्यों? एक्सिस किसको कहते हैं? एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये भी एक एक्सिस है. सो ए रे अलोंग एनी एक्सिस, एनी एक्सिस. A ray along any axis reflect back on the same path. इस रे में कौन सी कंडीशन है? A ray passing through center of curvature. Center of curvature along axis reflect back on the same path. तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो लाइन ही एक्सिस है. तो अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, इधर जाएगी तो सेम लाइन पे वापस आ जाएगी. तो ये 3 नियम आप याद रखेंगे. नंबर 1, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर return from the same direction. Number 2, parallel to principal axis will be reflected passing through focus, and any ray which is going through the focus will be reflected back as parallel to the principal axis. ये नियम, ये तीनों नियम हमने याद रखने. So this is, ये जो जनरल प्रिंसिपल है, इससे हम अब बनाएंगे डिफरेंट टाइप की इमेजेस और इसके मैथमेटिकल रिलेशन. एक रिलेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं. व्हाट इज दैट? द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देयर डिस्टेंस इज रिलेटेड टू ईच अदर. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल एस्टैब्लिश few more relations. To make more relations, first we have to understand what is the image formation and how do we judge the location of image, कि इमेज कहाँ पर बन रही है, हमें कैसे दिखती है, इमेज होता क्या है. सो इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन. कई बार हम ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को देखते हैं और दूसरी जगह भी उसी चीज़ को देखते हैं. जैसे मूवी में आप स्क्रीन पे जिस आदमी की पिक्चर देख रहे हैं वो आदमी वहाँ पर नहीं खड़ा है, तो वहाँ पर कौन है? तो आंसर है कि वहाँ पर उसकी इमेज है. तो इमेज के लिए हम एक शब्द बनाते हैं, एक डेफिनेशन बनाते हैं कि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो आदमी वहाँ पर है. दैट मीन्स परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमेज. परसेप्शन, परसेप्ट करना, उस आदमी को वहाँ पर सोचना, उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पर सोचना. हमारा दिमाग सोच लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर है. जैसे हम मिरर देखते हैं, मिरर में हमको क्या लगता है कि हम मिरर के पीछे इस तरफ मुंह करके खड़े, लेकिन हम वहाँ नहीं खड़े. तो फिर ये क्या है जो हमको दिखता है? ये इमेज है. दैट इज परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. उसको हम इमेज कहते हैं. अब ये इमेज हमको कैसे दिखती है, कहाँ पर दिखती है, इसके लिए हमको अपना देखने का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा सोचना है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देखते कैसे हैं और ऑब्जेक्ट हमको कितनी दूर दिखते, इसका तरीका क्या होता है.
तो हमारे पास जो सिस्टम है देखने का, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आइज़ और एक हमारा ब्रेन। आइज़ और यहाँ पर हमारा ब्रेन होता है। तो एक्चुअली पिक्चर कहाँ बनती है? तो आंसर है पिक्चर हमारे ब्रेन में बनती है, सेंसेशन हमारे ब्रेन में होता है। और आइज़ क्या काम करती हैं? आइज़ इमेज बनाने के लिए हेल्प करती है। ओके, किस तरह से? देखिए, इसके पीछे, आइज़ के पीछे रेटिना होता है, ये एक लेंस होता है, यहाँ से जहाँ से भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो रेज इसमें से पार होती हैं और लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेज को मोड़ सकता है। ओके, वो अलग चीज़ है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं सब तरफ। हम ऐसी दो रेज लेते हैं जो हमारी आईज में पहुंच रही हैं। लेट अस से वन इज दिस एंड अदर इज दिस। ये दो रेज हमारी आंख में आती हैं और ये अपना पीछे उसकी इमेज बनाता है। हमारी आंख की क्या आदत होती है कि जिस डायरेक्शन से ये रेज आईज में एंटर करती, ये उस डायरेक्शन को हम जानते हैं, उस डायरेक्शन को ये आइज ट्रेस कर सकती हैं। तो ये आइज जब ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं तो मैसेज क्या जाता है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कहीं भी रखा है। कहाँ रखा है नहीं मालूम, ये इस डायरेक्शन में कहीं भी रखा है। इस रे से ये इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी रे से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि यही ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही दिखता है, पर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कहीं रखा है, ये ऐसा। तो दो सिग्नल गए, एक सिग्नल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन में है, दूसरा सिग्नल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन में। बस ये जो दो सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह अपने आप काम करता है और वो ये देख लेता है कि अगर इस डायरेक्शन में हम इधर बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में इधर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट तो एक ही है। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ये रे नहीं आ सकती थी, ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ये रे नहीं आ सकती थी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? वेरी ऑब्वियस, ब्रेन समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसलिए एक रे यहाँ आ रही है और एक रे यहाँ आ रही है। तो ब्रेन का मेथड क्या है? ब्रेन आने वाली हर रे को बैक ट्रैक करता है। बैक ट्रैक, ये जो डायरेक्शन ऐसे आ रही है इसको बैक ट्रैक करना है, बैक ट्रैक करना है और वो एक कॉमन पॉइंट को ढूंढता है, कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों रेज की डायरेक्शन में ये कॉमन पॉइंट आया तो आंख को ये पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो ये तरीका है इमेज की दूरी को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देखने का। हमको ये पता है कि ये इतना दूर है और वो ऑब्जेक्ट उतना दूर है। क्यों? क्योंकि हर एक से ऐसे रेज आती हैं और उन रेज के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल रहता है। इस एंगल से हमको पता लगता है कि ये कितना दूर है। ये अगर ऐसा बड़ा एंगल बनेगा तो इसका मतलब ये रास्ता छोटा है और ब्रेन इसको बैक ट्रैक करके पता लगा लेता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। इसलिए ये जो एंगल है ये हमको हेल्प करता है बैक ट्रैक करने में। जितना ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा ये एंगल छोटा होता जाएगा और हमको पता लगता जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट दूर है। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी दूर पे है तो ये दोनों रे तो पैरेलल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो जो पैरेलल रेज सन से आती हैं, आकाश से आती हैं, उससे हमको क्या पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो ये तरीका होता है लोकेशन का। अब इस तरीके में देखिए, इस तरीके में हम बड़े आराम से आँखों को
ब्रेन को धोखा दे सकते हैं। किस तरह से इसको धोखा दे सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, यहां एक मिरर रखा, प्लेन मिरर, और इसको इस तरह से सेट किया कि इसकी एक रे यहां से गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे ऐसे गई और यहां से ये इक्वल एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये दोनों रेज आंख में पहुंची। आंख को नहीं पता है कि ये रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसकी इंफॉर्मेशन कहां पर होती है, सिर्फ इतनी सी बस। तो इस आंख ने क्या देखा, एक रे ये अंदर एंटर कर रही है, ये इधर एंटर कर रही है। उसने अपना पुराना लेसन दोहराया, इसको बैक ट्रैक करो, इसको बैक ट्रैक करो, दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां कॉमन पॉइंट है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, हमारा दिमाग क्या समझता है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है ये, जबकि हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन हमारा दिमाग नहीं मानता। वो क्या कहता है कि मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट यहां रखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेज इस डायरेक्शन से आ रही है। वो रेस के साथ यहां नहीं जाता, वो सिर्फ इतना सा देखता है बस कि ये रेस जो एंटर कर रही है किस डायरेक्शन से कर रही है। और ये रेस को अगर हम देखें कि ये कहां से एंटर कर रही है, देखिए ये दोनों एंटर कर रही हैं, तो यहीं से आई होंगी, यहां से। इसलिए ब्रेन को लगता है कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो क्या रखा है? नहीं रखा है, लेकिन उसको ऐसा आभास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परसेप्शन। तो इसने इस ऑब्जेक्ट को कहां परसीव किया, यहां पर। तो ये जो परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, इमेज। ये है इमेज फॉर्मेशन का तरीका। तो मेथड क्या बना? मेथड ये बना कि वो वाली दो रेज लीजिए जो हमारी आईज में एंटर कर रही हैं। सब प्रोसेस होने के बाद में लास्ट टू रेज विच आर एंटरिंग अवर आईज, उनको जब आप बैक ट्रैक करेंगे, तो बैक ट्रैक करके जो उनका कॉमन पॉइंट आएगा, वो इमेज की लोकेशन होगी, और हमको इमेज वहां पर दिखता है। यही हम डेली देखते हैं मिरर्स में, लेंस के थ्रू, कहीं पर भी। तो ये तरीका है इमेज का। अब इस इमेज को भी हमने क्लासिफाई किया। ये इमेज दो तरह की हो सकती है। दो तरह की कैसे हो सकती है? हमको लगा यहाँ पर इमेज है, तो हमने यहाँ पर एक स्क्रीन ऐसे रख दी। जब यहाँ पर स्क्रीन रखी, तो हमने देखा कि ये जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये जहाँ से ये रेज निकल के जा रही, ओके, यहाँ पर स्क्रीन रखी, देखा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पिक्चर नहीं बनाता है। जैसे हम मूवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, वो पिक्चर नहीं बन रही है इस स्क्रीन पे। तो हमको जो इमेज दिख रही है वो सिर्फ परसेप्शन है, इमेज नहीं है, एक्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है। ऐसी इमेज को बोलते हैं दिस इज नॉट ए रियल इमेज, और इसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। अब एक और तरह की इमेज भी हो सकती है, उसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ से एक रे गई, ऐसे आई फोकस से होके, दूसरी रे फोकस से गई, तो वो इसके पैरेलल होके यहाँ से आई। ये इधर आ रही है, ये वाली इधर आ रही है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड हैं, इस तरफ आ रही हैं। हम यहाँ पर अपनी आईज को सेट करते हैं और इसको देखते हैं। देखिए आईज में ये दो आ रही हैं, तो हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन आएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ए, ये ए पॉइंट कहाँ रखा है। तो इससे पीछे गया,
इसको बैक ट्रैक किया, ये कॉमन पॉइंट मिला, तो हमको यहां पर क्या मिल गया, ए यहां दिखता है। तो हम क्या सोचते हैं, ए यहां रखा है, ये हमारा परसेप्शन है और ये इमेज है। ओके, बी कहां है, ये बी के लिए नियम याद रखिए, बी से हमने सिर्फ एक रे ली जो कि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो वो वापस भी कहां से आएगी, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये श्योर है कि बी की इमेज कहां बनेगी, समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, समवेयर। उस लोकेशन को हम ढूंढना चाहते हैं। तो एक नियम हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर राइट एंगल बनाता है, खड़ा हुआ है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे राइट एंगल बनाते हुए खड़ी हुई मिलेगी। और बी है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस तरह से है कि ए बी की इमेज ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। तो हमने बना दिया ये परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर भी है और परपेंडिकुलर भी है, इसलिए ये किसकी लोकेशन है, बी की, बी डैश। तो ये बी की इमेज यहां बनी, ए की इमेज यहां बनी और इसके बीच के सारे पॉइंट की इमेज यहां 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 बनी। तो ये पूरी क्या बन गई, इमेज किसकी, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश। शॉर्टकट हमने याद कर लिया सिर्फ दो तरीके से, ए से दो रे निकालिए, वन विच विल गो पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, द वन विच इज गोइंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं that appears to be common point for both the rays which are entering our eyes। तो ये हमको A डैश की लोकेशन देता है और B डैश की लोकेशन बहुत आसान है, just make a perpendicular on the principal axis, get the B dash। So A dash B dash is image of AB as appear to our eyes। अब ये रे एक्चुअल जा रही है, ये रे एक्चुअल आ रही है। यहां पर हमने क्या देखा था, ये रे एक्चुअल जा रही है, ये रे एक्चुअल जा रही है, इधर कोई रे नहीं जाती। इसलिए जब हम यहाँ स्क्रीन रखते हैं तो उस स्क्रीन में कोई शाइनिंग नहीं होती, क्योंकि रे है ही नहीं, रे तो यहाँ गई। ये तो सिर्फ दिमाग को वहम है, परसेप्शन है। यहाँ पर ये एक्चुअल रे है, ये एक्चुअल रे है जो कि हमारी आंख में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रीन को रखते हैं, यहाँ पर लाकर हमने ऐसे स्क्रीन को रखा तो क्या देखा, यहाँ ए बी का इमेज आ गया, ए बी यहाँ बन गया। दैट इज द इमेज व्हाट यू सी इन द सिनेमा हॉल। तो वो जो आप इमेज देखते हैं, चमकती हुई इमेज, वो रियल रेज के बिना नहीं बन सकती। तो यहाँ पर रियल रेज आई हैं, इसलिए यहाँ पर इमेज बनी। सो दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। और इस तरह की जो इमेज बनती है इसको हम कहेंगे रियल इमेज। ये कौन सी है, वर्चुअल, क्योंकि रेज के रास्ते में देखिए ये पॉइंट आता ही नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये हमने इसको एक्सटेंड किया है। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग ये सोचता है कि इधर से ऑब्जेक्ट है और ये दोनों आ रही हैं, कॉमन पॉइंट यहाँ है। वो मोड़ कर नहीं सोच सकता कि कहाँ है। तो ये वाली इमेज क्या कहलाती है, जो एक्सटेंशन से बनती है, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज एंड दिस इमेज इज रियल इमेज। और इसको नोट कर लीजिए, can be taken on screen। बनी कैसे है, image formed by intersection of actual rays is real image and this can be taken on the screen। और ये कैसी है,
This is image perceived this, or so this image is perceived by extension of direction of backtracking of the rays. No real rays are intersecting, and this cannot be taken on the screen. ये वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज. पूरे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, वेदर इट इज रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और एनीथिंग, ये बार बार आएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए रियल इमेज, व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज, एंड हाउ डू वी फॉर्म द लोकेशन ऑफ इमेज. वो जो 3 रूल हमने पहले बनाए थे, उसी रूल से हम रिफ्लेक्शन करके एक पॉइंट की इमेज बनाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंगे, एंड वी गेट द इमेज ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट. इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी. सो दिस इज, वी हैव लर्न्ड हाउ इमेज फॉर्मेशन इज डन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the distance of focal length, and this is focal length, and this is this is the distance of image from pole. There is a relation between them. Curvature, u, v, f, they are all related to each other. If we find out the relation between the three, we will call it mirror equation. So that mirror equation we will derive and use in the next lecture. We will also see that the size of image with respect to object may be different. ये हो सकता है इमेज इससे बड़ी हो जाए, उसको हम बोलेंगे मैग्नीफाई होना, छोटी हो जाए. उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या रिलेशन होता है, that also we will derive in the next lecture. Thank you.